सावधान। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सभी से निवेदन करतल ध्वनि से स्वागत करें। नीले आकाश से फूल झरने लगे, चांद तारे गगन में विचरने लगे, बज उठी आज आनंद की बांसुरी, स्वर निकलने लगे। स्वागतम स्वागतम। महात्मा गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं आईजी एसटीसी बीएसएफ टीपीएमजी माननीय श्री जयकृत सिंह रावत सर। सभी से पुनः निवेदन करतल ध्वनि से स्वागत करें। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवी। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासी। महात्मा गांधी जिनके आदर्शों के जो आधार थे सत्य, अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व, वे किसी व्यक्ति, देश या समय के लिए नहीं थे, बल्कि वे मानवता के लिए और सार्वदेशिक तथा सार्वभौमिक हैं। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व आदि के पुजारी थे। गांधी व्यक्ति में प्रेम और स्वतंत्रता का संचार करना चाहते थे। वे व्यक्ति को पुरुषार्थ का महत्व समझाना चाहते थे। वे हिंसक शस्त्रों के स्थान पर अहिंसक साधनों को अधिक श्रेष्ठ मानते थे। शत्रुता के स्थान पर मित्रता और घृणा के स्थान पर प्रेम की शिक्षा देते थे। आज विश्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी जयंती के इस पावन अवसर पर हम सब यहां एकत्र हुए हैं। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आईजीएसटीसी बीसीएफ एवं चेयरमैन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर पीपीएमजी श्री माननीय श्री जयकृत सिंह रावत सर से निवेदन कि वे आए और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र के सम्मुख माल्यार्पण करें। माननीय श्री जयकृत सिंह रावत। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं श्री ललित कुमार, सीईओ एसटीसी बीएसएफ, और डॉक्टर संदीप। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
extend a warm welcome to our chief guest of today, IG STC BSF PBMG Sri Jayakrit Singh Rawat, CEO STC Sri Lalit Kumar, and Dr. Sandeep from BSF. I welcome you all. I would invite Mrs. Neelam Malviya Madam, Principal of our school, to welcome the chief guest and the other respectable guests by presenting them a sapling. Please give a big round of applause to him. I would also like to request Shukla sir to present a cap to the dignitaries of this program today. It is my great pleasure to mention that the caps are sponsored by Canara Bank. I'm thankful to all the officials for this honor. Thank you. Thank you, sir. A very good morning to one and all present here. Welcome our chief guest, IG STC BSF and Chairman BMC of our Vidyalaya, Sri Jayakrit Singh Rawat sir, for accepting our invitation. Sir is a very inspiring, motivating personality. He takes active interest in the events of the Vidyalaya and his presence encourages us all. Sir, it is an honorable moment of our school to have your prestigious presence in today's event. My sincere thanks to you, sir. I extend my heartiest welcome to our nominee chairman, CEO STC BSF, Sri Lalit Kumar, sir. Sir, you have always been a supporting, guiding and inspiring purpose for all of us and helped us whenever we approached you. Thank you for accepting our invitation and supporting us in all the ways. I also welcome Dr. Sandeep, who has accepted our invitation and guided us in this event. Parents are the entire world for a child. Your support and presence always motivates us. I take this opportunity to welcome all the personals from BSF who have come here to join us in this event and also in the plogging run. Your presence motivates us, encourages us and gives us a direction to do something in a proper way. I welcome all the parents as well as the BSF personals in this event. And my students who are there present here in a physical mode as well as many of the students who are doing this plogging run and celebrating this event virtually in their own home and will be sharing us their participation. Sir, I would like to share that KVS is the leading organization in the Fit India Run and the plogging run at present. And today we are concluding this event officially, but we do know that now this has become a part of our life. And as individuals, as persons who are associated with KVS, we need to inculcate this value not only in ourselves but also train and motivate others also who are associated with us to keep ourselves fit and keep our surroundings clean. The plogging run, which we all know, is a combination of Fit India Run and Fit India Freedom Run and the Swachhata Abhiyan. So, in participating in one of the events, that is the plogging run, we are taking care of not only of our health but also taking care of the environment around us, the surrounding around us. We can be a good motivators, especially the students who can motivate and as has been given the directions
from our headquarters that each one of us, it is our duty to motivate to at least 5 members who can take part in the Fit India Freedom Run as well as the plogging run. So this is not the event to be celebrated only for today. We are to celebrate this every day, not only for ourselves, our health, but also for our country, for the global this recovery of our on earth. So we need to take a pledge that this event must not be stopped today, but it has to be continued throughout our life. And we should not wait for again for 2nd October or any other directions from our government, from KVS. But every day we must take out some time for ourselves, our country, and contribute our own bit as well as motivate others. I also welcome the personals from Akash Institute who are sponsoring this event, and they are really encouraging us. They have been helping us in different programs. So thank you all for coming here and helping us. Once again, I cordially welcome, officially welcome all of you in this event. And today, as we know, we are celebrating Gandhi Jayanti, Shastri Jayanti also. So I thank you, sir, for being a part of this event, and you have officially given us the permission to celebrate all these 3 events, and your presence has made this event grand. And I hope this event will be a memorable event, and we will cherish all the memories of this event, our participation, and we can also share these memories with our own friends, and this will surely encourage our students and our parents and will motivate them to participate in such events in a large number. So thank you very much. I once again welcome you all in this event, and thank you for being a part of this event. Thank you, ma'am, for this warm welcome. A man whose very name has become synonymous with non-violence and freedom, whose sacrifices rightly earned him the title of Father of Nation. Mahatma Gandhi is more than an individual. He is a movement that still exists today. आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पहरी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी लगी तूने चढ़ाई। वारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़ी जोर की दुश्मन भी तपाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो ऐसा दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। एक दिन इतिहास पूछेगा
कि तुमने जन्म गांधी को दिया था। जिस समय अधिकार, शोषण, स्वार्थ, हो निर्लज, हो निशंक, हो निर्द्वंद, सद्य जगह संभले राष्ट्र में घुन से लगे, जर्जर उससे करते रहे थे, तुम कहाँ थे और तुमने क्या किया था। बच्चन जी की इन प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ ही आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा भारत के अमर्त्य सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने अंतर मन से नमन करते हुए गांधी जी पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज हम उस विस्मयकारी और अद्भुत व्यक्तित्व की जयंती मना रहे हैं जिसके विषय में आइंस्टीन के शब्द थे कि आज से 100 साल बाद हार मास से बना कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला फिरा था, इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। सचमुच आने वाली नस्लों के लिए महात्मा गांधी किसी किंवदंती या मिथक से कम नहीं है, जिन्होंने एक विश्व विजयी सत्ता को अपने आत्मबल से बिना किसी अस्त्र शस्त्र के न केवल पराजित किया बल्कि सारे संसार के सामने युद्ध और अशांति से इतर एक ऐसा मार्ग दिखाया जिससे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है, शांति से क्रांति लाना संभव है। सत्य और अहिंसा जैसे अध्यात्म शिखर तत्वों को राजनीति की भूमि से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण कार्य महात्मा गांधी ने किया है, उसके लिए समस्त विश्व सदैव उनका ऋणी रहेगा। गांधी जी के लिए भारत की आजादी केवल अंग्रेजी शासन से आजादी नहीं थी, बल्कि ये एक चहुतरफा लड़ाई थी जिसके हर मोर्चे पर वो बहुत ही बखूबी लड़े। उन्होंने भारत की आंतरिक बुराइयों की ओर ध्यान दिया जो समाज की जड़ों को खोखला कर रही थी और उनको मिटाने का बीड़ा उठाया। अत्याचार, अनाचार, शोषण, अस्पृश्यता जैसे अमानवीय व्यवहार से विखंडित समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास उन्होंने किया और स्वर्णिम भारत की नींव रखी। गांधी जी मात्र नेहरू, विनोबा भावे या मोदी जी के लिए ही प्रेरणा स्रोत नहीं है, बल्कि उस दमित, शमित और दुर्बल वर्ग के लिए एक ऐसी प्रबल आशा की किरण है जो सदियों तक न जाने कितने लोगों के जीवन में जीवंतता को अंकुरित करती रही थी। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी गांधी जी के विचार हमारे लिए दीप स्तंभ की तरह हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, विश्व शांति या राजनीति। नेहरू से लेकर मोदी के स्वच्छता अभियान तक गांधी जी के विचारों को यथार्थ के धरातल पर सजाने की कटिबद्धता हर नेता, हर भारतीय के मन में स्पष्ट और सजग है। 2 अक्टूबर तारीख है इसी कटिबद्धता को तरोताजा करने की और ये संकल्प लेने की कि महात्मा गांधी जी ने भारत को लेकर जो स्वप्न देखे थे हम उसे साकार करके रहेंगे। अंत में दिनकर जी की पंक्तियों में या उनके शब्दों में, बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने को, अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को शतशः प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। निखिल विश्व के शांति यज्ञ में निर्भय हम ही लगेंगे, आएगा आकाश हाथ में हम सारी रात जगेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for enlightening us. मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य, शिक्षक साथी, अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आज हम महात्मा गांधी के साथ साथ हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आप अपने सामने शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल पर अपनी बात रखूंगा। साथियों, प्रथम प्रधानमंत्री जी के समय से ही लोग कहने लगे थे कि नेहरू जी के बाद कौन। यह सवाल और भी प्रासंगिक हो गया जब चीन से मिले धोखे के कारण हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का अकस्मात निधन हो गया।
2 जून 1964 को शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। शुरू में एक सीधा साधा, बहुत सीमा तक एक अनिर्णय की स्थिति वाला प्रधानमंत्री माना जाता रहा, जो किसी भी राष्ट्रीय समस्या को समाधान हेतु कोई दृढ़ कदम उठाने में असमर्थ था। परंतु शास्त्री जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस धारणा को गलत साबित कर दिया। साथियों, कई बार प्रकृति भी ऐसे अवसर उपलब्ध कराती है जब व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने का मौका मिलता है। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने अपनी इस क्षमता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ करीब करीब 19 माह का कार्यकाल था, परंतु उन्होंने इस कार्यकाल में इतिहास में ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। शास्त्री जी देश के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य करके गए जिन्हें उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। सन 1965 में देश के कई राज्य भयानक सूखे की चपेट में आ गए। देश में खाद्यान्न का आपातकालीन भंडार ना के बराबर था। तब देश राज्य खाद्य व्यापार निगम का गठन किया गया और देश में हरित क्रांति योजना का भी प्रारंभ हुआ। देश के किसानों को पहली बार महसूस हुआ कि देश के निर्माण में उनका भी योगदान है। हरित क्रांति देश को खाद्यान्न की दृष्टि से स्वावलंबी बनाने में मील का पत्थर साबित हुई और देश आगे चलकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया। और आज वर्तमान स्थिति ये है कि सरकार स्वयं बोल रही है कि आप धान और गेहूं का उत्पादन कम करें, क्योंकि आज का हमारे पास इतना भंडार है कि एक्स्ट्रा है हमारे पास, मतलब उसके लिए तो सरकारें खुद बोल रही है कि अब इनका, तो ये हमारा आज जो स्थिति बनी है ये उस कदम का ही परिणाम है जो शास्त्री जी ने उठाए थे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल को इतिहास में अमर बनाता है वह है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। पाकिस्तानी नायक जनरल अयूब खान ने सोचा 1962 में चीन से हुए युद्ध के कारण भारत की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई होगी और भारत को आसानी से पराजित किया जा सकता है। परंतु इस युद्ध में शास्त्री जी का दृढ़ और जुझारू व्यक्तित्व सबके सामने आया। उन्होंने सेनाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान के साथ करीब 3 सप्ताह तक इस युद्ध चला, जिसमें उसकी थल सेना और वायु सेना बुरी तरह से तबाह हो गई। अपनी पराजय से पूरी तरह घबराए पाकिस्तान ने अमेरिका और सोवियत संघ के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में गुहार लगाई। इस जीत से शास्त्री जी भारतवासियों के हीरो बन गए और उनको एक सामान्य प्रधानमंत्री समझ रहे लोग भी अब उनका जय जयकार करने लगे थे। शास्त्री जी ने सैनिकों और कृषकों को बराबर समान सम्मान देते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस 1965 के युद्ध के समय जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो ताशकंद में उनका निधन हो गया। और ऐसे प्रधानमंत्री को मेरा बार बार नमन और जय हिंद जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक, प्यारे बच्चों, सभी अभिभावकगण एवं हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले सीमा सुरक्षा बल के हमारे कार्मिकगण, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्य जन्म तिथि पर मैं आप सभी को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश की सेवा एवं मानवता के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है उसको स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महात्मा गांधी जी की जीवन कथा, उनकी शिक्षा, उनका हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में नेतृत्व, उनका अहिंसा पर पूर्ण विश्वास तथा रंग भेद, जाति प्रथा आदि को
जड़ से खत्म करने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उस सब से हम भली भांति परिचित हैं। इस वर्ष भारत सरकार ने गांधी जयंती को मनाने के लिए एक विशेष विषय चुना है और वह है स्वच्छता। क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता बहुत पसंद थी। वे अपने घर और अपने चारों तरफ के वातावरण को स्वच्छ रखने पर विशेष बल देते थे। आज यदि हम सही मायने में अपने राष्ट्रपिता को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम सबको हम सभी यह प्रण लें कि हम स्वयं की, अपने घर और अपने इर्द गिर्द के स्थान की स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखेंगे। इसलिए आज आपके विद्यालय में प्लॉगिंग रन का आयोजन इस उपलक्ष्य में रखा गया है। प्लॉगिंग रन एक तरह का इको फ्रेंडली एक्सरसाइज है। इसमें आपकी एक्सरसाइज भी होती है और आपको जो इन्वायरमेंट है उसको साफ रखने की हैबिट डालने की कोशिश है। इस प्लॉगिंग रन में हम सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इसमें हिस्सा लेंगे और जन जागृति पैदा करेंगे कि हमें अपने वातावरण को अपने घर के अलावा अपने वातावरण को भी शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। भारत सरकार ने भी इस अवसर पर अपने सभी कार्यालयों में, मंत्रालयों में, विभागों में और स्कूलों या प्रशिक्षण संस्थानों में गांधी जयंती को मनाने के लिए एक स्वच्छता का विशेष प्रोग्राम को चलाकर, इस तरह के अभियान चलाकर अपने देश को स्वच्छ रखने हेतु जन जागृति ताकि हम पैदा कर सकें, इसकी कोशिश करी है और इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक व केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के बच्चे, उनके माता पिता एवं सभी शिक्षकगण इस पावन कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये केवल मात्र आज के दिन ही नहीं बल्कि अपनी जीवनचर्या में डेली का जो आपका कोरम है उसमें आप इस स्वच्छता का जो प्रयास है उसको अपने आप भी और अपने चारों तरफ के जितने भी अपने परिवार के लोग हैं और अपने वातावरण को भी शुद्ध रखने का हमेशा कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for taking time to speak to us today and making this program a grand success and memorable. It is actually a new fitness trend. It is a first of its own kind to highlight the need for reducing plastic consumption and healthier way of managing trash. It combines Fit India movement and Swachh Bharat Abhiyan. This activity has two-pronged effects, Swasthya and Swachhata, staying fit while keeping the country clean. I further request our chief guest to declare the Fit India movement close today. Today, I declare Fit India Freedom Run 2 closed. मंचासीन सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, अतिथिद्वय, प्राचार्य महोदया, अभिभावकों, शिक्षक साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आभार प्रदर्शन की इस औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर की ओर से सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIIG श्री जयकृत सिंह रावत सर का, जिन्होंने हमारे विनय को बड़ी ही प्रसन्नता एवं सहजता के साथ स्वीकार किया एवं समय निकालकर विद्यालय के इस छोटे से आयोजन में शामिल होकर हमें गौरव एवं इस कार्यक्रम को
गरिमा प्रदान की। हमारे विद्यालय के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक रूप से रुचि लेना, उसका आनंद लेना निश्चित रूप से हमारे प्रति आपका अगाध प्रेम दर्शाता है। सर, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है तथा विश्वास दिलाता है कि आपके सानिध्य में विद्यालय के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को और निखारेंगे और न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं नॉमिनी चेयरमैन CEO STC श्री ललित कुमार सर एवं डॉक्टर संदीप सर का, जो आज के इस आयोजन के गवाह बने और इस मंच को गौरव प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं BSF के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों का, जिनकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की तथा हमें संबल। यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय अभिभावक भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की और इस राष्ट्रीय पर्व पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। धन्यवाद उन सभी शिक्षक साथियों का, जिनके अथक परिश्रम से ही हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। वास्तव में आज का कार्यक्रम इन्हीं के प्रयासों की परिणति है। विशेष धन्यवाद सुश्री राखी मिश्रा मैडम एवं श्री राठौर सर का, जिन्होंने गांधी जी एवं शास्त्री जी के विचारों को हमारे समक्ष रखा, हमारे विद्यार्थियों के समक्ष रखा, ताकि वे भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में अवश्य मदद करेंगी। उन शिक्षकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने बच्चों की कमी को पूरा करते हुए बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम फिट इंडिया रन का समापन एवं प्लॉगिंग रन का आयोजन कर रहे हैं। विद्यालय में इन दोनों कार्यक्रमों के सफल संचालन के प्रभारी श्री शाहिद अंसारी सर का भी इस मंच से धन्यवाद करती हूँ। श्री सी के शुक्ला सर एवं सुश्री प्रतिमा निगोड़कर को भी सफल मंच संचालन हेतु धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद, जो आज इस प्लॉगिंग रन का हिस्सा बनेंगे, जिन्होंने शांतिपूर्वक कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को सुना और आनंद लिया। साथ ही साथ आकाश इंस्टीट्यूट एवं कैनरा बैंक का भी विद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम का जो अभी स्पॉन्सरशिप है वो आकाश इंस्टीट्यूट और कैनरा बैंक की तरफ से ही है। विद्यालय की ओर से आपको तहे दिल से आभार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इन समस्त गतिविधियों के नियंत्रक एवं मार्गदर्शक हमारे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीलम मालवी मैडम का, जो सर्वोत्तम प्रस्तुति के लिए निरंतर कर्मशील रहती है तथा उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर विद्यालय को एक नई पहचान देना चाहती है। धन्यवाद मैडम। और अंत में उन समस्त, इसी के साथ हम पुलिस विभाग का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके कारण हम इस कार्यक्रम को सुरक्षित रूप से संपन्न कर सके। अंत में उन समस्त सहयोगियों का धन्यवाद, जिनके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग से हम इन दोनों आयोजनों को संपूर्णता प्रदान कर पाए। एक बार पुनः सभी को आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am. I request the gathering to rise. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल
तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की